Hello students, how are you all? With the help of this video, you will be able to understand that how depreciation is charged under diminishing balance method when some part of the asset is sold, not the complete asset. So let us see with the help of this practical question. Question is, Lakshmi Limited purchased machinery for rupees 40,000 on 1st October 2015. 1 अक्टूबर 2015 को एक मशीनरी परचेज की 40,000 रुपीज़ की. डेप्रिसिएशन की रेट है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. 1 जनवरी 2018 को 1/4 ऑफ द मशीनरी वॉज फाउंड अनसुटेबल. मशीनरी का 1/4 पार्ट अनसुटेबल हो गया एंड डिस्पोज ऑफ फॉर ₹6,000 और से 6,000 रुपीज़ में सेल कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया. ऑन द सेम डेट a new machinery at a cost of rupees 15,000 was purchased. और उसी सेम डेट को ही एक न्यू मशीनरी परचेज कर ली 15,000 रुपीज़ की. राइट अप द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स. 4 ईयर्स का मशीनरी अकाउंट शो करना है. अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को एवरी ईयर. तो सबसे पहले हम एक समरी प्रिपेयर कर लेते हैं. 1 अक्टूबर सबसे पहले हम समरी प्रिपेयर कर रहे हैं कि कब हमने परचेज की और सेल की. सबसे पहले हमने परचेज की है 1 अक्टूबर 2015 को 40,000 रुपीज़ की. 1 जनवरी 2018 को हमने जो फर्स्ट मशीनरी थी जो हमने 1 अक्टूबर 2015 को परचेज की थी उसका 1/4 पार्ट हमने सेल कर दिया. जैसे विद द हेल्प ऑफ एरो यू कैन सी कि 1/4 इज सोल्ड. And on the same date, 1 January 2018, one more machine is being purchased for 15,000. Now let us see the 4 years for which we have to show the machinery account. It will be first year will be 1 October 2015 क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहा है 2015 से. 1 अक्टूबर 2015 to 31 March 2016. 1 April 2016 to 31 March 2017, 1 April 2017 to 31 March 2018 and 1 April 2018 to 31 March 2019. तो ये हमारे 4 years बनेंगे. Now we will prepare the machinery account. Prepare the format first. After preparing the format, let us start the question. First of all, we have purchased the machinery on which date? We have purchased it on 2015 October 1st to bank account. This is our first machinery और इसको परचेज किया है 40,000 रुपीज़ में. ओके. अब ये ईयर क्लोज कब होगा? 2016 मार्च 31 को. तो जब अकाउंट ईयर क्लोज हो रहा है, एंड हो रहा है, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसके ऊपर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब हमने कितने मंथ्स इस मशीन को यूज़ किया बिजनेस में? 1 अक्टूबर को परचेज हुई थी, मार्च 31 तक कितने मंथ्स हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 6 मंथ्स. 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करना है इसके ऊपर. कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% इंटू 6/12. 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, 2 जा. तो 2,000 रुपीज़ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया. अब बैलेंस कैलकुलेट करेंगे. मार्च 31 बाय बैलेंस CD 40,000 minus 2,000 rupees. It will be 38,000. Final total face to face 40,000, 40,000. Got it? Then second year. In second year, first of all, what we will do? We will brought down the balance on which date?
2016 April 1 to balance BD. It will be 38,000. इस ईयर में भी nothing has been done, no sale, no purchase, nothing. तो simply chart the depreciation at the end of this year. End of this year will be 31st March 2017 by depreciation account. This year we have used this machine for the complete year. April to March पूरा साल ही बिजनेस के पास थी, तो we will chart the complete year depreciation. बैलेंस कितना है 38,000, तो 38,000 इंटू 10%, it will be 3,800. After that calculate the balance by balance CD. 38,000 minus 3,800 rupees. How much it will be? 34,200. Again final total face to face 38,000, and it will be also 38,000. 2 years are completed. Then come to the third year. In third year will start 2017 April 1. First of all, we will brought down the balance to balance BD. Balance is 34,200 rupees. Now in this year what is being done? One machinery is being purchased. एक न्यू मशीनरी परचेज की है 1 जनवरी 2018 को, 2018 जनवरी 1 को परचेज की है टू बैंक अकाउंट. ये सेकेंड मशीनरी परचेज हो गई 15,000 रुपीज की. एंड जो फर्स्ट मशीनरी थी उसका 1/4 पार्ट सेल कर दिया गया है. पूरी मशीनरी सेल नहीं की गई है, 1/4 पार्ट ओनली सेल हुआ है. तो 1/4 पार्ट भी कब सेल हुआ है? इसी डेट को 1 जनवरी 2018 को, अकाउंट्स क्लोज होने से पहले. तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे एंट्री. पहले हम इसको सेल कर देंगे बाय बैंक अकाउंट. कितने में सेल हुई है? ये हुई है 6,000 रुपीज में. ओके. अब जनवरी 1 तक का इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे जो 1/4 पार्ट सेल हुआ है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा इस पे? डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि अप्रैल से ये 31 दिसंबर तक बिजनेस में थी, जनवरी 1 को ये सेल हो गई. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का. अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. सेल तो ये फर्स्ट मशीनरी हुई है लेकिन पूरी नहीं हुई, इसका 1/4 पार्ट सेल हुआ है. तो 1/4 पार्ट पे ही 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा और रिमेनिंग पार्ट पर कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा. अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए वी विल हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट्स. लेट अस सी हाउ टू प्रिपेयर. बैलेंस ऑफ फर्स्ट मशीनरी on 1 अप्रैल 2017. फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस कितना था 1 अप्रैल 2017 को? इट इज़ 34,200. लेकिन हमें ये कंसिडर नहीं करना है, हमें कितना पार्ट लेना है? ओनली 1/4 सेल हुआ है. तो देयरफॉर 1/4 बैलेंस ऑफ 1/4 मशीनरी. तो इसमें से 1/4 मशीनरी का बैलेंस कितना होगा? ये पूरी मशीनरी का बैलेंस है जो सेल हुई है. तो लेकिन सेल पूरी मशीनरी नहीं हुई है, हमारी 1/4 हुई, तो हम इसमें से 1/4 बैलेंस ही लेंगे. 1/4 कैसे करेंगे?
34,200 इंटू 1/4, तो ये हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? इट विल बी 8,550. Okay, less डेप्रिसिएशन. अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम. ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा देखिए. अब डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है? 8,550 पे लगाना है. डेप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 9 months on rupees 8,550. You will calculate it like this: into 10% into 9/12. Okay, when we will solve it, we'll get 3 3 ja 9, 3 4 ja 12, 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो इट विल बी 855 into 3/4, and when we will multiply it, we will get 2,565 divided by 4. So when we will divide 2,565 divided by 4, तो exactly we will get 641.25. लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है क्या है, 5 से कम है, 2 है पॉइंट के बाद, तो हम क्या कर देंगे इसको, वी विल लीव इट. हम सिर्फ डेसिमल के आगे वाला पार्ट यूज़ करेंगे, 641. सो अब इसकी वैल्यू क्या थी जब हमने क्या किया, इसको सेल किया. उस टाइम इसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इसकी वैल्यू थी 7,000. इसको माइनस कर लेंगे, इसकी आएगा वैल्यू 7,909 वैल्यू थी इसकी. ओके, लेस. अब इसको सेल कितने में किया हमने, कितने में डिस्पोज ऑफ किया इसको? इसको डिस्पोज ऑफ किया 6,000 रुपीज़ में. तो कम में किया तो कितना लॉस हुआ? 1,909 रुपीज़ का लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हुआ? 1,909 रुपीज़ हुआ. अब हम इसको डेप्रिसिएशन और जो इसका लॉस है, वी विल शो इट इन द मशीनरी अकाउंट. लेट अस सी. सो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया कितना, 641. लॉस हुआ बाय लॉस ऑन सेल ऑफ machinery account. Loss is 1,909. Okay, now from first machinery 1/4 we have sold, and after selling loss is there. Now on March 31st, what we will do? Remaining part of the first machinery, on that machinery we will charge the depreciation on, and on the second machinery depreciation will be charged. Let us see. By depreciation account, फर्स्ट सेकेंड. अब फर्स्ट में से 3/4 पार्ट पर ही क्या लगाना है, हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि 1/4 पार्ट तो सेल हो चुका है. अब हम 3/4 पार्ट पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? सो वी विल शो इट with the help of working note. So 3/4 of first machinery on 1st April 2017.
फर्स्ट मशीनरी का 3/4 बैलेंस कितना होगा 1 अप्रैल 2017 को? टोटल बैलेंस था 34,200, इसका 3/4 कर देंगे हम। 3/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25,650। तो इस वैल्यू पर हम क्या लगाएंगे, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना बनेगा इसका 10%। एंड डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन विल बी 10% ऑफ ₹25,650। डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 2,565। तो दिस डेप्रिसिएशन वी विल शो फॉर द remaining part of the first machinery. So here we will write the depreciation 2,565. Now second machinery is being purchased on 1st January. So for how many months we will charge the depreciation? For 3 months, January, February, March. Okay, 15,000 into 10% into 3/12. Solve it. So what we will get? We will get 1,500 divided by 4. 1,500 divided by 4 is equal to 375. Total depreciation will be 2,940. Okay, now balance we will calculate. March 31st by balance CD. How we will calculate the balance? फर्स्ट मशीनरी, सेकेंड मशीनरी। अब फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एंड सेकेंड मशीनरी का कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट मशीनरी का हमारे पास कितना पार्ट है 25,650। सो 3/4 पार्ट ये है हमारा, इस पे से हमने डेप्रिसिएशन लगाया 2,565। ठीक है, सो वी विल गेट 25,650 minus 2,565, it will be 23,085. Balance of second machinery will be 15,000 minus 375, it will be 14,625. Total will be 37,710. Okay, after that what we will do, we will do the total face to face both sides. This side total is 49,200 and this side also when we will do, we will get 49,200. Now fourth year. In the fourth year, first of all we will brought down the balance 2018 April 1 to balance BD. First machinery, second machinery. Balance of first machinery is 23,085 and balance of second machinery is 14,625. Total 37,710. Now in 2019 we will close it. In 2019 March 31st we will charge the depreciation. Nothing is left now besides depreciation. First, second.
So it will be 10% of 23,085. एक्चुअली जब इसका 10% करेंगे तो ये आएगा 2,308.5. तो पॉइंट रिमूव करने के लिए हमने क्या कर दिया, क्योंकि 5 है तो हमने आगे इंक्रीज कर दिया, तो ये बन गया 2,309. और इसका 10% करेंगे हम सेकेंड मशीनरी का, तो ये आएगा 1,462.5. तो 5 है पॉइंट के बाद तो हमने आगे एक इंक्रीज कर दिया, तो ये बन गया 1,463. तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 3,772. बैलेंस बाय बैलेंस CD of first of second. Balance of first machinery will be 23,085 minus 2,309. So it will be 20,776, and balance of second will be 14,625 minus 1,463. So it will be how much? 13,162. Total balance will be 3,938. Final total 37,710. Okay, one more thing we will do. We will brought down the balance in 2019 April 1 to balance BD. First, second, 20,776 and 13,162. That is 33,938. That's all. So like this we will solve this question. Got it?